Hello and welcome to the another video of Literate Club. I'm B Talukdar presenting this video from Assam. Before starting, let me say Literate Clubs need your support. So please subscribe the channel, press the bell icon, and of course if you like the video, then hit the like button. Okay, let's start our today's discussion. Today we'll discuss about the हिस्ट्री ऑफ इंडिया हिस्ट्री ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, हर रोज न्यूज़ चैनल खोलते ही ना कोई नेता आपको ज़रूर नज़र आता होगा जो संविधान संविधान चिल्लाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आज हम उसी संविधान का इतिहास को देखेंगे। कहाँ से आया, भारत में संविधान का पैदाइश क्या है, कब से शुरू हुआ, सब कुछ देखेंगे आज। Let's start. See, the concept of constitution came after the establishment of British rule in India. See, Britishers for the first time they came to our country in the year of 1600. Britishers came to our country in the year of 1600 as a trader. You know, it was the British East India Company. They received a charter from the Queen Elizabeth I. Queen Elizabeth I. And they came to our country India. See, if you follow the European commerce, first Portuguese came. Then it was Dutch, then our English came. English means Britishers, and after that it was France. Now see, Britishers, though they were as a East India Company, though it was a trading company, but in the year of 1765 they obtained the right of Diwani. Do you know what is the meaning of Diwani? Diwani means it is the right of revenue and the civil justice in the region where Bengal, Orissa and Bihar. See, if you follow the British history, you can divide it into two equal half. See, two equal part. One is from 1765 to 1858, where India was under company rule. Company rule here. Company rule. And from year 1858 to 1947, where India was the direct control of British Crown. That means direct control of England. So what happened during the company's rule? During the company's rule, if you observe, British Parliament used to pass some laws that how this company will rule, and based on those rules, those acts, the company perform their ruling. Now see, what are the act passed under the company rule? See, in today's video we will consider only this portion, 1765 to this. I will cover this history part into two part. Okay, today we will discuss from 1765 to 1858. That means company rule, complete company rule. What are the laws came, and in my next part I will share with you the direct British rule. That means India under crown. And also in the next video we will discuss about our first cabinet. That means first cabinet of independent India, and also the interim cabinet that was formed in 1946. Everything we will discuss in the next video. Today we will cover only the company rule, how India was under company rule,
and what are the act passed under company rules which later on takes the shape of Indian Constitution. देखिए क्या है, देखिए अगर आप भारत का इतिहास, भारत का संविधान को थोड़ा गौर से देखेंगे ना, जो भी लॉस है वो बहुत हद तक ब्रिटिश वाला लॉस ही अभी भी चल रहा है। इनफैक्ट अगर आप क्रिटिक्स की माने तो भारत का जो संविधान है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 एक्ट से डायरेक्ट लिया गया है, और ये बहुत हद तक सच भी है। सो ब्रिटिशर्स का जो कानून था वो आज भी इंडिया में देखने को मिलता है। अगर एज फॉर एग्जांपल आप लोगे ये सेडिशन वाला कानून, सेडिशन ये ब्रिटिश टाइम से था, आज भी चलता है। ऐसा बहुत सा कानून है जो ब्रिटिश टाइम से ही चल रहा है, आज भी चलता है। इवन हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम इट वाज आल्सो इंट्रोड्यूस्ड बाय द ब्रिटिश, आज भी चल रहा है। सो देखेंगे सब कुछ, लेट्स स्टार्ट। देखिए अंडर कंपनी रूल्स पहला जो एक्ट पास किया गया था दैट इज योर 1773 रेगुलेटिंग एक्ट। सी ड्यूरिंग द कंपनी रूल्स वॉट एवर द लॉस वर पास बाय ब्रिटिश पार्लियामेंट इट वॉज कंसिडर्ड एज एन एक्ट। इट इज बिकॉज ये जो जितना भी कानून पास किया गया था ये सब ब्रिटिश पार्लियामेंट में पास किया जाता था। किस वजह से? कंपनी को मैनेज करने के लिए, कंपनी कैसे उसका रूलिंग्स करेगा भारत के ऊपर, उसको मैनेज करने के लिए, उसके ऊपर निगरानी रखने के लिए ही ये सारे के सारे लॉस पास किया जाता था ब्रिटिश पार्लियामेंट में। तो बात क्या है देखिए, सो अंडर दिस रेगुलेटिंग एक्ट, सो इसीलिए एक और बात 1858 से 1858 तक 1765 से लेके 1858 तक जितना भी कानून पास किया गया सबके पीछे एक्ट लगा हुआ है। कारण वही है क्योंकि ये ब्रिटिश पार्लियामेंट में पास होता था, और यहाँ पे जो भी कानून बनता था ये कंपनी को डायरेक्ट करता था कैसे आपको रूल करना है। सो देखते, सो रेगुलेटिंग एक्ट क्या कहता था? वैसे तो एक पहला स्टेप था ब्रिटिश इंडिया को रूल करने का कंपनी के द्वारा। तो इस एक्ट के अंदर देखिए ब्रिटिशर जो है इंडिया को ना 3 हिस्सों में बांटा था। एक था बंगाल प्रोविंस, दूसरा था बॉम्बे प्रोविंस, और तीसरा था मद्रास प्रोविंस। सो अंडर दिस रेगुलेटिंग एक्ट British governor of Bengal, it became the Governor General of Bengal, or who was the first Governor General of Bengal? It is your Warren Hastings. And also इसी के अंदर क्या किया गया, जो प्रोविंसेस ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास है इसका पावर को रिड्यूस कर दिया गया। इट बिकम्स इंफीरियर ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ओके, सो पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था वॉरेन हेस्टिंग्स। नेक्स्ट था हमारा अंडर दिस एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट के अंदर ही हमारा जो सुप्रीम कोर्ट का कॉन्सेप्ट है, जो आज भारत का एकमात्र रखवाला है संविधान का, हम कहते हैं जिसको संविधान का रखवाला सुप्रीम कोर्ट, उसका भी जो कॉन्सेप्ट है वो इसी एक्ट के द्वारा लाया गया था। और अंडर दिस एक्ट पहली बार के लिए कलकत्ता में 1774 में सुप्रीम कोर्ट का एस्टेब्लिशमेंट किया गया। एट दैट टाइम there was one chief justice and 3 other judges. एक क्वेश्चन मैं आप सबसे पूछता हूं, जो कोई भी इस चैनल को देखेगा एक जवाब जरूर दीजिएगा। एट प्रेजेंट इंडिया में कितना जजेस है, इंडिया के सुप्रीम कोर्ट में कितना सारा जजेस है? सो हम देख रहे हैं पहला बार के लिए जब सुप्रीम कोर्ट का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, that time it was only comprised of only 1 chief justice and 3 other judges. So it was the main provision of regulating act. देखिए हर जो एक्ट होता है ना उसमें कुछ कमियां रहता है, कुछ खामियां रहता है। आप एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हैं, जो कृषि कानून पास हुआ इसमें भी कुछ खामियां होगा, वरना किसान साल भर से रास्ते पे खड़ा है इसके अगेंस्ट में। सो ऐसे ही रेगुलेटिंग एक्ट में भी कुछ खामियां रह गया था, जिसको सुधारने के लिए ब्रिटिशर्स ने नेक्स्ट में पिट्स इंडिया एक्ट को पास किया था।
जो कि पास हुआ था 1784 को। सो ये जो पिट्स इंडिया एक्ट था, एक कंपनी का जो काम करने का तरीका होता उसको दो हिस्सों में बांट दिया गया। एक तो था कॉमर्शियल, क्योंकि वो बिजनेस रिलेटेड था, और दूसरा था पॉलिटिकल पावर्स। डे बाय डे कंपनी गेन कर रहा था, धीरे धीरे पूरा कंट्री को ही अपना कब्जे में कर लिया। देखिए, जो इसका कॉमर्शियल अफेयर्स को मैनेज करता था उसको नाम दिया गया था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, जो कंपनी का कॉमर्शियल अफेयर्स का देखभाल करता था। एंड एक और ग्रुप तैयार किया अंडर कंपनी, दैट इज कॉल्ड बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जो कंपनी का पॉलिटिकल अफेयर्स को देखता था। और वन मोर थिंग, अंडर दिस एक्ट फॉर द फर्स्ट टाइम the territory that British East India Company occupies, it was called as the British possession in India. Okay, so that means you can say यहाँ से भारत को प्रॉपरली रूल करना स्टार्ट कर दिया। इसके बाद कुछ और भी एक्ट लाया, देखते हैं क्या है। इसके बाद आया था आपका दो चार्टर एक्ट पास किया था। एक तो था 1833 वाला, दूसरा था आपका 1853 वाला। सो देखेंगे दोनों को ही। 1833 में चार्टर एक्ट में क्या किया था, भारत का सेंट्रलाइजेशन किया था। देखिए, इससे पहले भारत का जो भी रूलिंग होता था ना, उसका हेड था गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। नाउ क्योंकि भारत का एक बहुत बड़ा हिस्सा ब्रिटिशर्स के डायरेक्ट कंट्रोल में चला गया था, तो इसी के वजह से ब्रिटिशर्स को भारत का सेंट्रलाइजेशन करना पड़ा। सो एक और एक्ट लाया गया जो कि था 1833 का चार्टर एक्ट। इसके अंदर ब्रिटिश इंडिया का सेंट्रलाइजेशन किया गया, और जो हमारा गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था, इसका नाम चेंज करके बना दिया गया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, जो कि बना विलियम बेंटिक। सो विलियम बेंटिक वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। मोर it deprived the governor of Bombay and Madras. And see, from here the commercial body, that means commercial body, it was purely transferred to administrative body. That means ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी था, जो एक्चुअली कॉमर्शियल पर्पस के लिए इंडिया में आया था, इसको पूरी तरह से एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी में ट्रांसफर कर दिया गया। एंड ये अब हम लोग आईएएस वाला को जानते हैं ना, ये भी जो कॉन्सेप्ट है, ये भी ब्रिटिशर्स के टाइम में पास हुआ था, और ये कॉन्सेप्ट इसी एक्ट के द्वारा पहली बार प्रपोज किया गया था 1833 को। एट दैट टाइम उसका नाम आईसीएस हुआ करता था, इंडियन सिविल सर्वेंट। सो दिस सिस्टम वाज आल्सो प्रपोज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम अंडर दिस एक्ट, बट इसको पास नहीं किया जा सका, क्योंकि जो हमारा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर था एट दैट टाइम, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, जो कॉमर्शियल अफेयर्स का देखभाल करते थे, वो लोग इसका ऑपोजिशन में आए। क्यों आया था, देखिए, जब इस सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया, सो इट वाज क्लियरली मेंशन दैट नो इंडियन विल बी डिवर्ड फ्रॉम होल्डिंग एनी प्लेस। सो इसको देख के कुछ ऑफिसर आया था ब्रिटिश के, जिसका शायद खून खोल गया था, इंडियंस को इतना मौका क्यों मिलेगा, बिकॉज बहुत ही डिस्क्रिमिनेटरी नेचर रखता था ब्रिटिशर्स। कभी कभी तो ऐसा भी देखने को मिला, इतिहास का पन्नों में ऐसा भी तो लिखा था कि डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड, डॉग्स के साथ कंपेयर करता था इंडियंस को। बहुत ही डिस्क्रिमिनेटरी नेचर था ब्रिटिशर्स का। सो इसी के वजह से कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का जो मेंबर था, उन्होंने एक ओपोजिशन शो किया, जिसके वजह से ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये पास नहीं हो पाया अंडर चार्टर एक्ट 1833। इसके बाद इसको री इंट्रोड्यूस किया गया अंडर चार्टर एक्ट 1853। सो क्या था अंडर चार्टर एक्ट 1853 लिखा हुआ है, देखिए, मैंने यहाँ पे चार्टर एक्ट लिखने को भूल गया था, लेकिन यहाँ पे मैं लिख के दिया है 1853 वाला चार्टर एक्ट। सो इसके अंदर क्या किया गया, ये जो सिविल सर्वेंट वाला कॉन्सेप्ट है, इसको री इंट्रोड्यूस कराया गया, और इस बार इसको पास भी कराया गया। सो दैट मीन्स इट इंट्रोड्यूस एन ओपन कॉम्पिटिशन फॉर द सिस्टम एंड रिक्रूटमेंट ऑफ सिविल सर्वेंट। सी, एंड ऑल्सो व्हाट हैपेंड, based on this,
मैकले कमेटी को भी अपॉइंट किया गया। सिविल सर्वेंट, इंडिया की सिविल सर्विस को, सिविल सर्विस का रूप कैसा हो, काम कैसा हो, इस सब के निगरानी, सबके ऊपर नजर रखने के लिए मैकले कमेटी को भी रिक्रूटमेंट किया गया है। इट वाज बेस्ड ऑन द सिविल सर्वेंट कमिटी, इट वाज अ सिविल सर्विस कमिटी, ओके, सिंपली इट वाज ए सिविल सर्वेंट कमिटी। मोर ओवर, इस एक्ट के अंदर ना एक बहुत बड़ा सुधार लाया गया। देखिए, ब्रिटिशर जो रूल करता था, ये पहला टाइम से उसका एक लेजिस्लेटिव काउंसिल हुआ करता था, गवर्नर जनरल का, जिसके अंदर गवर्नर जनरल को काम करने के लिए, हेल्प करने के लिए कुछ लोगों का अपॉइंटमेंट होता था। अंडर चार्टर एक्ट 1853 क्या किया गया, जो फॉर द फर्स्ट टाइम लोकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ द 6 न्यू लेजिस्लेटिव मेंबर, जो कि था लोकल प्रोविंशियल से, लाइक मद्रास, बॉम्बे, बंगाल एंड आगरा, वहाँ से कुछ लोकल लोगों को, लोकल ब्रिटिश गवर्नर जनरल के एडवाइजर का, दैट मीन्स उसका जो काउंसिल था उसमें अपॉइंट किया गया। सो यहाँ से कुछ इंडियन को भी डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन मिला गवर्निंग में। सो एक हिसाब से देखा जाए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट है, इंडियंस को रिप्रेजेंट मिलने लगा। सिविल सर्वेंट का कॉन्सेप्ट है जो आज भारत का डेमोक्रेसी का बैकबोन बन के खड़ा है। हर एक रूल्स, ब्यूरोक्रेट्स का एक बहुत बड़ा रोल होता है इंडिया में क्या, पूरा वर्ल्ड वाइज में ब्यूरोक्रेट्स का एक बहुत बड़ा रोल होता है। सो भारत में ब्यूरोक्रेट्स का कॉन्सेप्ट इसी एक्ट के द्वारा पहली बार के लिए पास किया गया। सो आज और एक बात, ये जो 1853 वाला जो एक्ट है, चार्टर एक्ट, इट वाज द लास्ट एक्ट अंडर कंपनी रूल। अंडर कंपनी रूल इट वाज द लास्ट। सो इसके बाद क्या हुआ, आपको सभी को मालूम होगा, 1857 में सिपोई म्यूटिनी हुआ। सिपोई म्यूटिनी, आफ्टर सिपोई म्यूटिनी द ब्रिटिश क्राउन दे एज्यूम द डायरेक्ट पावर ऑफ इंडिया। इसके बाद से जो भी एक्ट पास होने लगा, उसके पीछे वाला एक्ट वाला वर्ड हट गया और उसका डायरेक्ट नाम हुआ गया। देखिए, दैट मीन्स सिंपली आप बोल सकते हैं, अभी जिसके बाद जो एक्ट पास हुआ वो कंपनी के अंदर नहीं था और सीधा क्राउन के अंदर था। उसका नेक्स्ट वाला हिस्सा हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिर भी बोल देता हूँ, इसके नेक्स्ट वाला हिस्सा में हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 को डिस्कशन करेंगे, जो कि सिपोई म्यूटिनी के जस्ट बाद इंट्रोड्यूस किया गया। मोर ओवर, इंडियन काउंसिल एक्ट को डिस्कस करेंगे 1861, 1892 एंड 1909 को। ऑल्सो विल डिस्कस द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909, sorry, Government of India Act 1919 and Government of India Act 1935, which was considered as the backbone of our present Indian Constitution। एक बहुत बड़ा हिस्सा इसी एक्ट से पास किया गया। इवन इनफैक्ट हमारा जो RBI रिजर्व बैंक बना, ये भी इसी एक्ट के द्वारा बना। सो डिस्कस करेंगे बहुत कुछ। एंड अगेन माई रिक्वेस्ट, शो योर सपोर्ट, डू सपोर्ट, सब्सक्राइब द चैनल। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग फीचर्स लाते रहेंगे, ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के ऊपर हम डिस्कस करते रहेंगे। कुछ बायोग्राफी भी कवर किया है मैंने, लाएंगे एक के बाद एक। बने रहिए चैनल के साथ, स्टे ट्यून एंड कीप सपोर्टिंग। थैंक्स।